हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैलरी के बारे में जो देखा था, मैं बात आपको रिकैप करवा देता हूं। सैलरी हेड के बारे में जो हमने बात की थी उसमें सबसे पहला सेक्शन डिस्कस किया था, दैट वाज योर सेक्शन 14। There are 5 heads of income: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ठीक है। सेक्शन 14A के बारे में हम लोगों ने देखा था, इफ देयर इज एनी इनकम विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी के बारे में देखा था। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी में ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन जो डिलीट हो चुका है, और सेक्शन 16(3) डिडक्शन था हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। And in that particular section I had told you that this benefit is available only to a government employee and non-government employees cannot avail the benefit of entertainment allowances. If any employer provides the benefit of entertainment allowances to its employee, then the first of all it will be added in the gross salary, and after that the deduction will be available only to a government employee. Least of these three is deductible. Actual amount 5,000, 1/5 of basic salary. After completion of section 16(2), we have discussed about section 16(3), and that was your professional tax or employment tax. And under this section we have done what? Whatever the amount is paid by the employee in this account, in what account? In this account under professional tax or employment tax will be deductible at all, irrespective of the fact whether the employee is getting any amount with respect to entertainment, with respect to professional tax or employment tax. Okay. Section 17 was the definition part, and there were two sections which we have seen. The first, section 17(1) is the definition of salary. डेफिनेशन ऑफ सैलरी की जब हमने बात की थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, perquisites, allowances, and section 80 CCD. Is it clear? Section 17(2) was the definition of perquisites. Perquisites की definition में देखा था rent free accommodation provided by employer to the employee, concessional rent accommodation provided by employer to the employee, the value of any obligation of the employee is met by the employer, the value of any benefit whether convertible into money or not, the value of any benefit provided by the employer to the employee, either at free of cost or at concessional rate, only in the case of a specified employee. Okay. Any other fringe benefits as may be prescribed, और as may be prescribed का मतलब मैंने बताया था go to rules. इसमें तो नई चीजें ऐड की थी मैंने, शायद आपसे डिस्कस किया होगा कि रिसेंट अमेंडमेंट है 2-3 साल पहले के। पहला बताया था एनी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय अंडर द स्कीम ऑफ ESOS और ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्कीम, either at free of cost or at concessional rate. And lastly we discussed about any contribution made by the employer in a superannuation fund, approved superannuation fund in excess of rupees 1,50,000. Yes or no? Yes sir. ये हम लोगों ने देखा था। शायद हम लोगों ने एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया था जो सेक्शन 17(2) में रह गया था, that was sir what is the definition of a specified employee? What is the meaning of specified employee? क्योंकि इसमें आपने एक पॉइंट में स्पेशली बोला था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ये 3 हो सकते हैं,
कितने लोग हो सकते हैं? ये तीन में से कोई एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा. If you are just going to fulfill any one of these three conditions, you would be treated as a specified employee. And now you can say that each and everybody is specified employee. क्योंकि इस सेक्शन में काफी सालों से अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि हो नहीं पा रही, किया ही नहीं जा रहा. जरा देखते हैं वो तीसरी कंडीशन कौन है जिसकी रिक्वायरमेंट है अमेंड करने की. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है. डायरेक्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है. ठीक है सर, होगा, अच्छी बात है, नाम से पता चल रहा है. किस सिचुएशन में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? जरा देखें. द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट provided by employer to employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. मैंने लिखवाया है, जरा ऊपर देखें पॉइंट नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स में मैंने पॉइंट नंबर 4 में यही लिखवाया है. द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट provided by employer to the employee either at a free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. और उस समय मैंने बोला था ये वो बेनिफिट्स हैं जो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर देता है तो ही टैक्सेबल होता है. If the same benefit is provided by employer to the employee other than specified employee, it is not chargeable to tax. Is it clear? जी. तो director of a company is always a specified employee. ठीक है सर. दूसरा, if any employee holds substantial interest सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फिर नई चीज आ गई. हाँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है सारभूत हित. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, कंपनी का एम्प्लॉय हूं, वर्ड है कंपनी का एम्प्लॉय हूं. और अगर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मेरे पास उस कंपनी के कम से कम 20% 20% शेयर्स मैं होल्ड करता हूं और वो भी इक्विटी शेयर्स या वोटिंग पावर वाले शेयर्स, तो कहा जाएगा मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हूं. अगर मैं किसी कंपनी के, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, मैं अपनी एम्प्लॉयर कंपनी का 20% या उससे अधिक का इक्विटी शेयर होल्ड करता हूं तो मुझे सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा. ओके. मैं अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में हूं, एम्प्लॉय हूं, पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉय हूं, और अगर मैं उस पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स का 20% या उससे अधिक का प्रॉफिट शेयर करता हूं तो मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हूं. मैं अगर किसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में एम्प्लॉय हूं और उस फर्म के प्रॉफिट का 20% या उससे अधिक मैं होल्ड करता हूं तो मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हूं. सर आप ना जो ये 3 पॉइंट बता रहे हैं ना, ये पल्ले नहीं पड़ रहा. क्यों नहीं पड़ रहा? अगर आप किसी फर्म में 20% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट होल्ड करेंगे प्रॉफिट्स में, इट मींस यू आर अ पार्टनर. Who told you that only a person who holds share in the profits of the concern would be treated as a partner? I am a person, if I just want to have 20% share in any partnership firm or a proprietorship firm in the profits, it doesn't mean at all that I am the partner. कोई जरूरी नहीं. डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सर डायरेक्टर की सैलरी जो होती है वो तो अदर सोर्सेज में भी जा सकती है. इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर एंड अ कंपनी एज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, देन द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. इन दोज सिचुएशन the salary received by the director would not be charged to tax under the head income from other sources. In those circumstances or situation, the same amount of a salary would be chargeable to tax under the head salary in the hands of a director because he is a employee of the company, as I have already discussed about that. Is that clear? जी sir.
अगर डायरेक्टर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तो इसको मिलने वाली सैलरी हेड में जाएगी और वो उस कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अगर कोई दूसरा बंदा जो किसी कंसर्न में एम्प्लॉय है और उसमें वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। तीसरी और सबसे अनोखी बात और वो ये कि अगर किसी पर्सन की सैलरी मॉनिटरी टर्म्स में इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 है तो भी वो बंदा क्या कहलाएगा सर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सोचो, एक स्वीपर है, उसकी सैलरी मेरे यहां 6,000 पर मंथ है, सलीना वो 72,000 ड्रॉ कर रहा है इन कैश। वो स्वीपर, वॉचमैन को कोई भी हो, उसको हम क्या मान लेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कहां चेंज होने की जरूरत है सर? इस लिमिट में। जी, काफी साल हो गए इंतजार करते करते करते, कभी तो वो दिन आएगा जब ये चेंज होगा और उस चेंज के चक्कर में हम लोगों ने कई दिन, महीने और साल बिता दिए। अब आते हैं आपसे जो हम बात करने जा रहे हैं, अच्छा, वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। मैंने जो अभी आपको बताया, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं सेक्शन 17 वंस अगेन। सेक्शन 17 डेफिनेशन पार्ट है। 17(1) इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80 CCD। सेक्शन 17(2) इज द डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट की डेफिनेशन में बताया द वैल्यू rent free accommodation provided by employer to the employee, concessional rent accommodation provided by employer to the employee, any obligation of the employee is met by the employer, the value of any benefit provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee। अच्छा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जब अगर बात आई है तो मैंने 3 तरीके बताए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। वो बंदा जो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा ही होगा। दूसरा मैंने बताया वो पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। और तीसरा मैंने बताया अगर किसी पर्सन, किसी एम्प्लॉय की मॉनिटरी सैलरी 50,000 से अधिक हो जाए तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर 50,000 से अधिक की मॉनिटरी सैलरी हो जाए, मॉनिटरी सैलरी 50,000 से अधिक हो जाए तो सर वो आपका बन जाएगा क्या? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इस 50,000 का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स, जितने भी मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं वो सब एक जगह ऐड कर दें। जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जितनी भी बेसिक सैलरी है, जितना भी कैश बेनिफिट्स दिया जा रहा है परक्विजिट्स को छोड़ करके, exclude perquisites, excludes non-taxable allowances, भले ही कैश में हो, after deduction, the most important point, जहां आकर बच्चे गलती करते हैं वो ये पॉइंट है। जो मॉनिटरी सैलरी का कैलकुलेशंस करेंगे तो नाम तो मॉनिटरी है, वी नो वेरी वेल दैट द परक्विजिट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द मॉनिटरी इनकम। इन द सेम वे नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड ओवर हियर, बट द मेन प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग द डिडक्शन, वेदर द amount of salary of ₹50,000 is to be computed after deduction of section 16(2) or 3. Yes, it must be deducted before counting ₹50,000. Is it clear? जी सर। तो 50,000 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको इन दोनों डिडक्शंस को भी यूज
यहाँ लेस करना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो छूट रही थी, रिवीजन करते समय याद आ गई। वापस आते हैं सेक्शन 617(3। क्या है ये 17(3)? डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। और जब हम इस डेफिनेशन को देखेंगे, दे आर 3 पॉइंट्स विच आर नीडेड टू बी डन। 3 चीजें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, 3 पॉइंट्स हैं। Any compensation due to or receipt from present or former employer due to, on account of, termination or modification प्रेजेंट और फॉर्मर में हटा देता हूं, फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर, ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन। क्या बोलता तू, क्या मैं बोल लूं? सुन, सुना, ये एनी पर्सन क्यों लिखा सर? एनी पर्सन से रिसीव करेंगे, आपने तो ये बताया था कि एम्प्लॉयर से रिसीव करेंगे। फिलहाल बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर cessation of the employment. And the third, key man insurance policy. क्लियर जी सर। अब हम इन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर और अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये पॉइंट? मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं अपने मालिक के पास गया, मालिक ने कहा बोल। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे ना सैलरी बढ़ा करके दो, अब तक तुम मुझे ना 30,000 देते थे, मुझे 35,000 रुपए चाहिए। मुझे काम करते हुए 5 साल बीत गया और हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, you told me that after completion of 5 years your salary would be 35,000. Now this is the date when I have completed my 5 years of tenure of service, increase it to rupees 35,000. मैंने अपने मालिक से क्लियरली बोला। मालिक ने कहा इधर आ बैठ मेरे पास, तुझे कुछ बताऊं। मालिक से कहा, मैंने, तू क्या बताएगा? उन्होंने कहा, भाई देख, दुनिया में मंदी चल रही है, धंधा सबका मंदा है, लेकिन अब बताओ, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ तुझे निकाल दूं। अब मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। मैंने क्या सोचा था 30,000 से सैलरी बढ़कर 35,000 होगी, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे निकालने पर तुला हुआ है।
मैंने कहा मालिक ऐसा अन्याय ना करो। मालिक ने कहा बेटा इसका तो सपना छोड़ दो, आगे से तुम्हें अगर मेरे यहाँ काम करना है तो 20,000 ले लेना, अदरवाइज निकल। मैंने कहा मालिक शायद आपको याद नहीं। मालिक ने कहा क्या नहीं याद मुझे? मैंने कहा मालिक आपको शायद याद नहीं, आपने हमको जब अपॉइंट किया था बोला था कि अगर हम आपके एम्प्लॉयमेंट की शर्तों को बदलेंगे या आपको बीच में निकाल बाहर करेंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट की शर्तों को अगर हम बदलेंगे, मॉडिफिकेशन, या आपको हम निकालेंगे तो 5 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी अब आप हमको या तो निकाल रहे हैं, लाइए मेरा 5 लाख रुपए, या तो आप मेरी सेवा शर्तों में चेंजेस ला रहे हैं, लाइए मेरे 5 लाख रुपीस। अब ये सुनकर मालिक की सिट्टी और पिट्टी गुम हो गई। मालिक ने कहा ठीक चल तू 5 लाख ले ले और चल निकल यहां से, ना तुझे ये मिलेगा ना कुछ मिलेगा, चल ये 5 लाख पकड़ और निकल। ये जो 5 लाख मुझे मिला है क्या ये मेरी सैलरी है? हाँ, मैंने क्या बोला है, यहां ढंग से हेडिंग पढ़ेंगे, वेतन के स्थान पर लाभ। यानी इंस्टेड ऑफ गेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट और कंपनसेशन, वॉट एवर द नेम यू वांट टू गिव। Now I am not getting the amount of salary, but from the same person with whom I was working, I am getting rupees 5 lakh as a compensation. Might be मेरा एम्प्लॉयर रेडी हो जाता कि ठीक है 30,000 से 20,000 कर दिया, ये ले 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। अगर वो मेरी सैलरी को 30,000 से 20,000 कर देता और मुझे 5 लाख 3 लाख 4 लाख दे देता, इट मीन्स आई एम गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ लूजिंग ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द सैलरी। जो मैं 10,000 या 5,000 सैलरी लूज कर रहा था उसके बदले हमको मेरे मालिक ने वो प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट दिया किसके स्थान पर? वेतन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब मैं इसको पढ़ूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर था। एंड वॉट एवर द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज अ सैलरी एंड मस्ट बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। मैं फिर से बोलता हूं, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन from its employer on account of termination or modification in terms of employment। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? नो। दूसरे पॉइंट की बात करें जी, any amount due to or received from any person, I am not writing over here as an employer, I am not getting the amount of compensation from my employer। दिमाग की बत्ती जल गई। कैसे? अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अगेंस्ट व्हाट? सर आप ना कुछ ऐसा लिख देते हैं ना कि दिमाग से समझ में नहीं आता। बिफोर ज्वाइनिंग, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिफोर जब ज्वाइनिंग, क्या कभी किसी बंदे को नौकरी ज्वाइन करने से पहले का सैलरी मिलते हुए देखा है? क्या कभी किसी बंदे को नौकरी छोड़ने के बाद सैलरी मिलते हुए देखा है? सर आप अजीबों गरीब बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। सुनने में आपको ये बात अटपटी लगेगी, लेकिन यही सत्य है। कैसे सर? आप जरा थोड़ा और खुलकर समझाइए जी, सुने ढंग से। मैं अपने एग्जाम हुआ गवर्नमेंट का, एक वैकेंसी निकला था और बोला गया कि आप फॉर्म्स फिलअप करें, वैकेंसी फॉर्म, एग्जाम होगा, आपका अपॉइंटमेंट तय हो जाएगा। मैंने भी वही किया, वैकेंसी फॉर्म भरा, गवर्नमेंट जॉब थी, एग्जाम हुआ, सिलेक्शन हो गया।
I was just waiting from the department to get an appointment letter. वो अपॉइंटमेंट लेटर की डेट तो नहीं आई, लेकिन हमारे पास एक लेटर जरूर पहुंचा जिसमें लिखा था कि जो एग्जाम हुआ था ना, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था ना, जिस इंटरव्यू में आप पास हो गए थे ना, वो रद्द हो गया। क्या हो गया? वो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। और ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ है। आप अकेले नहीं, आपके साथ 10,000 लोग और हैं जो आपके साथ इसमें पिस गए। अब हम पीछे क्या पीछे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिए। अब कोर्ट तो ऐसी होती है, एक दिन कोर्ट केस फाइल करो, अगले दिन उसका डिसीजन आ जाता है लाइक योर चारा घोटाला। ऐसा नहीं, सालों साल बीत गए, आज 7 या 8 साल बीत गए। मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, कुछ सोच रहा था, डाकिया डाक लाया और उसमें लिखा था कि आप कोर्ट केस जीत चुके हैं, आप इस तारीख से ज्वाइनिंग कर लीजिए। मतलब 8 साल में उस इंतजार में बेरोजगार था। क्या मेरे जैसे वो 10,000 लोग भी बेरोजगार होंगे? नहीं। उन 10,000 में 5,000 लोग किसी दूसरी जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को ले लिए, कोई 2,000 3,000 प्राइवेट जॉब में चले गए, कोई 1,000 1,500 के पास लेटर नहीं पहुंचा, शहर छोड़ दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, दुनिया में नहीं रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम बाकी लोगों के साथ, या उन लोगों ने अपना कोई बिजनेस ओपन कर लिया, या तो वो किसी और हायर पोस्ट पर चले गए, वॉट एवर द केसेस। बट ओनली 2,000 to 3,000 पीपल्स वे वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। Now after having such type of decision, I was very happy. क्यों? क्योंकि 8 साल बाद डिसीजन आया, और 8 साल बाद जब ये डिसीजन आया तो मैं फूल करके कुप्पा हो गया। वो कुप्पा इसलिए हो गया क्योंकि मुझे उन 8 सालों की भी सैलरी मिलेगी। देखें, मैंने ज्वाइनिंग अब करनी है, और जब मैं ज्वाइनिंग करूंगा तो उस दिन से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया ही नहीं था, तो उस समय का अगर हमें उस बंदे से या मेरे मालिक से कुछ पैसा मिलता है उस ड्यूरेशन का, जब मैं उसके एम्प्लॉय था ही नहीं, that is not to be treated as an amount of salary, but yes, that is the amount against in place of salary. That's why it is fall under the definition of profit in lieu of salary. I am not getting the amount of compensation from my employer, because the amount of compensation I am getting relates to that particular period of time in which I was not in the position of the employee. Yes sir. और अगर मुझे ऐसा कोई अमाउंट मिल रहा है, that's why I have written it as any person, not the employer. Any amount due to or received from any person before joining. ठीक है सर, समझ में आ गया ये बात। लेकिन आफ्टर सेसेशन मुझे निकाल दिया गया। तूने ही गलती की, चल भाग इधर से निकल। मुझे निकाल दिया गया, मैंने अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया, 8 साल बाद डिसीजन आया, मैं जीत गया। मुझे उन 8 सालों का हिसाब दो। और अगर मुझे उन 8 सालों का हिसाब मिलेगा तो एवन after cessation of the employment, I was not employee of the particular department, but after 8 years I am going to get the amount of compensation relating to that in 8 years in which I was not in the position of the employee. Is it clear? जी सर, ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? पक्की बात है सर। अब मैं बोलूं आपको ये दोनों, कोई दिक्कत? Any compensation due to or receipt from its employer on account of termination or modification in terms of employment, any amount due to or receipt from any person before joining or after the cessation of the employment, and the third one is key man insurance policy. अब मैं आपको थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, that is key man insurance policy. ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आज मैं यहीं स्टार्ट करूंगा और यहीं इसका हिसाब किताब खत्म भी कर दूंगा। फ्यूचर में आप मुझे कभी रिमाइंड मत करेंगे, जब दूसरे तरीके जब हम पीजीबीपी पढ़ेंगे तो मैं आपको उस समय बोलूंगा कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पीजीबीपी में भी आ रहा है, जाओ वापस देखो सैलरी हेड में। मैं पीजीबीपी हेड में आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बताऊंगा।
इन द सेम वे जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे होंगे तो उस समय भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वर्ड आएगा। मैं उस समय भी बोलूंगा जाओ सैलरी हेड में मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में डिटेल और कहानी बता दी है। अब आपको मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टार्ट करते हैं। ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? एक मेरे यहाँ चपरासी है या प्यून है, ऑफिस बॉय है, जिसके हाथ में चाबी रहती है, घुमाता रहता है। ही इज अ की मैन, ही इज अ मैन हु इज हैविंग की और कीज, उसको हम बोलेंगे की मैन। और अगर ऐसे बंदे का इंश्योरेंस करवा दिया जाए तो कहा जाएगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। की मैन का मतलब ऐसा बंदा, की मैन का मतलब ऐसा बंदा। कौन सा बंदा? जिसके हमारे बिजनेस में काम करने या ना करने से हमको फायदा या नुकसान होता है। उसके काम करने से मुझे फायदा और उसके काम ना करने से मुझे नुकसान होता है। दैट पर्टिकुलर मैन और पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज की मैन। और अगर अब देखिए ना, मेरे बिजनेस में 10 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, उसमें से एक या दो ऐसे होंगे जो पूरे सर पर अपना बोझ लेकर के घूम रहे हैं और मैं घर पे आराम से बैठा हूं। दैट यस, दोस पीपल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर इन द ऑफिस नाउ, रिलैक्स, गेट रिलैक्स, दे विल हैंडल ऑल द सिचुएशंस। अब मैं कुछ ऐसा सोच करके काम कर रहा हूँ। सोचे तो वो मेरे लिए की मैन की तरह काम कर रहे हैं। इन केस अगर मेरा कंपटीटर उनमें से किसी एक को अपने में मिला ले, क्या होगा? मैं उनको सैलरी देता हूँ 50,000 bucks, बट द अदर वन पर्सन, अदर कंपटीटर ऑफ my business is offering them rupees 80,000, बट ऑब्वियस है कि वो मेरा बिजनेस छोड़ करके मेरे कंपटीटर के साथ चले जाए। आई लूज। केवल वो एम्प्लॉय लूज नहीं करूंगा, मैं उससे मिलने वाले फायदों को भी मैं लूज करूंगा और फ्यूचर में भी मेरी चीजों को नुकसान होगा, बिकॉज द अदर वन पर्सन नोज ईच एंड एवरी क्लूज ऑफ माय बिजनेस। वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब या तो ये हो गया, या तो दूसरा हो सकता है कि मेरा जो ऐसा एम्प्लॉय है निकल लिया। अब अगर वो भगवान को प्यारा हो गया या मेरे कंपटीटर को प्यारा हो गया, दोनों में से कहीं भी प्यारा हुआ, नुकसान हुआ। अब उस नुकसान को सहेगा कौन? लेकिन ना, ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप ऐसे बंदे का करवा लें क्या? इंश्योरेंस। तो अगर ऐसा बंदा आपके कंपटीटर के पास या भगवान के पास जाता है तो दोनों केसेस में आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा। जो उसके कारण ना रहने पर आपको नुकसान हो रहा है, उसका कंपनसेशन आपको मिलेगा। एंड दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू बी कॉल्ड एज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जरूरी नहीं, क्या नहीं, जरूरी नहीं कि एक एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस करवाए। हो सकता है कि एक प्रिंसिपल भी अपने एजेंट का इंश्योरेंस करवा सकता है। एक कंपनी है, उसका एक एजेंट है, बहुत तेज तर्रार एजेंट है। जब वो रहता है, बिजनेस में काम करता है, तो कंपनी के बारे न्यारे होते हैं, सेल पे सेल धमाधम होती है। हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्टी, चलो कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्टी का करवाए, हो सकता है। तो इन सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होगा? एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया और 10 लाख में से जब इसकी डेथ हो गई तो इसको 10 लाख रुपए मिल गए, क्योंकि अब इसके बिजनेस को नुकसान हो रहा था। इसने 10 लाख में से 4 लाख इसको दे दिए। दया आ गई, भाई उसके घर वालों को भी तो देना है ना, और 6 लाख इसने खुद रख लिए। What would be the tax treatment in the hands of the employer as well in the hands of the employee? अगर मैं कीमैन की बात करूं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के रिसीविंग की बात करूं,
तो वॉट एवर द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। अब हमें आपको बताने की जरूरत न हो कि ये जो एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा वो सैलरी हेड में ही जाएगा जी। अच्छा सर, इसके लिए he is getting the amount of compensation against those losses now which arises due to not the presence of employee. He is losing his business and that is the amount of compensation what he compensates against those losses. तो उन लॉसेस के अगेंस्ट, उन किन लॉसेस के अगेंस्ट, बिजनेस लॉसेस के अगेंस्ट उसको ये 6 लाख मिला है, सैलरी के लॉस के अगेंस्ट मिला, बिजनेस के लॉस के अगेंस्ट मिला, पीजीबीपी में जाएगा ना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जी। इन द सेम वे अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट का इंश्योरेंस करवा लेता है तो इसको तो अपने बिजनेस के अगेंस्ट मिलेगा, ये पीजीबीपी में जाएगा जो भी इसको मिलेगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, लेकिन इसको जो भी मिलेगा एजेंट को वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर का भी कहां जाएगा और इसका, दैट्स इट। कहने का मतलब ये कि जब हम लोग अब सैलरी हेड पढ़ेंगे वहां पर अगर मैं बोलूं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इट मींस आई एम जस्ट गोइंग टू इंडिकेट दिस वन फिगर ओनली because this is the amount which is to be treated under the head salary for the purpose of charging taxability. But what about the PGBP? In the same way, when we will discuss about the PGBP head of income, in that case if I'll tell you that amount of key man insurance policy, it means I am just going to indicate all these 3 amounts. And when I'll teach you the income from other sources, and at that time if I'll indicate the amount of income from other sources, it means I am just going to indicate plainly about the these amount of incomes. Is it clear? तो हमें जब अदर सोर्सेज पढ़ना है और उस समय मैं की मैन इंश्योरेंस बोलूं तो आप लोग समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। और जब मैं पीजीबीपी की बात करूंगा और मैं वहां पर बोलूं इनकम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसका मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीस 3। और सैलरी हेड में जो आज हम लोग कर रहे हैं वहां पर मैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं तो इसका मतलब मैं किस अमाउंट की बात कर रहा हूं, इस अमाउंट की बात कर रहा हूं। फ्यूचर में अब कभी भी आप हमसे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात नहीं करेंगे। Is it clear? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हम अभी आज आपको केवल एक टॉपिक लिख करके और छोड़ करके चले जाएंगे, ना मैं ए समझाऊंगा उसका, ना मैं बी समझाऊंगा। फॉर गॉड सेक आप इस टॉपिक को घर पे एक बार जरूर देखेंगे, आज तो देखेंगे, नोट करेंगे ही करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन से पहले आप इस टॉपिक को जरूर देख लेंगे। एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन आई विल पिक दिस वन टॉपिक and I'll start to teach you each and everything. I'll try to make you understand each and everything about section 1010 which relates to gratuity, and this is after retirement benefits. और मैं कुछ भी नहीं बोलने जा रहा, मैं केवल नोट करते चला जाऊंगा, आप भी मेरे साथ नोट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल दिया। फॉल्स ना लिखे, कवर्ड लिखे, जो आदत है। नॉट कवर्ड,
अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972. Least of following is exempt. मैंने डिडक्टेबल वर्ड नहीं बोला है, मैंने एग्जेम्प्ट वर्ड यूज किया है. लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. यहां पर भी इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, वो माफ होगा. मैं कुछ भी नहीं बताने जा रहा आपको. पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट. पॉइंट नंबर 1, actual amount. Yes or no? Yes. Maximum limit. Maximum limit 10 lakhs. Third, half month salary means 15 divided by 26 days salary for each. On the basis of last drawn salary for each completed years of years of service or part thereof. Half month salary, and we know normally half month means 15 divided by 38 days. On the basis of last 10 months एवरेज सैलरी. मैंने देखे लास्ट को सर्कल बना दिया, क्यों? वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. और मैंने यहाँ और पार्ट देयर ऑफ वर्ड नहीं लिखा, चलिए लिख दे रहा हूं. और पार्ट देयर ऑफ, इसको मैंने काट दिया ताकि ये याद रहे. सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए. सैलरी इज इक्वल टू हियर बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज. मैंने आपको कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया, मैंने केवल पॉइंट्स को आपके सामने रख दिया, लिख दिया, कुछ भी नहीं समझाया. आज आप इस पूरे पॉइंट को अपनी कॉपी में एज सच कॉपी कर लेंगे. और नेक्स्ट सेशन में आई स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 1010 ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी में दो तरह के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो चीजें देखते हैं, whether the employee is covered under the gratuity act 1972 or the employee is not covered under the gratuity act 1972. If employees fall under the category of gratuity act 1972, then the amount will be exempt in least of the following three: actual amount maximum 10 lakhs, half month salary means 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof. While in this case not covered under the gratuity act, actual amount maximum rupees 10 lakh, or third one हाफ मंथ सैलरी, हाफ करके हाफ मंथ सैलरी 15 by 30 days salary means 1/2 on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service and not or part thereof. मैंने उसको कट कर दिया.
salary in the first case means basic salary plus DA, while in the other case salary means basic salary plus DA if plus percentage. What does it stands? I don't know. I'll discuss about in our next session. Till then, goodbye. Thank you. Thanks a lot.